Hello students, today in this lecture we will discuss some elementary properties of group. Now first property is uniqueness of identity element. Identity element is always unique. Now proof is, suppose E1, E2 are two identity elements of G. If E1, E2 both are identity elements of G, we take firstly E1 is identity element, then obviously E1 star, star means binary operation is star, E1 star E2 is equal to E2. If E2 is identity element, then E1 star E2 is equal to E1. Now left hand side से equal, obviously right hand side से equal होंगे, E1 is equal to E2. That means E1 E2 both are identity elements of G and both are equal. That means identity element is always unique. Now second property is uniqueness of inverse element. Inverse is always unique. Let E be the identity element of a group and let A belongs to G be any arbitrary element. Arbitrary element. Now obviously A belongs to G, G is a group. G group A the inverse exist करेगा, A inverse also belongs to G. Since G is a group, we have to prove that uniqueness of inverse. Suppose there are two inverse B1 B2. A inverse is equal to B1 B2 for B1 B2 belongs to G. If B1 B2 both are inverse of A, then A is star binary operation B1 is equal to E, B1 star A. ਜਦੋਂ B1 inverse ਸੀ A ਦਾ ਤੇ then A result ਆ ਗਿਆ. If B2 is inverse of A, then R result आ गया. A star B2 is equal to E is equal to B2 star A. एक A result आपने को दोनों आ गई ਜਦੋਂ B1 B2 की सी inverse ਸੀ. Now B1 ले लिया ਆਪਾਂ left, B1 लेके चले हैं. B1 ਨੂੰ लिख सकते हैं B1 star E. E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ A star B2, ਇੱਥੋਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ A star B2. ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. B1 star means binary operation A star B2. that means B1 star A ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ. ਕਿਉਂ? because G ਕੀ ਹੈ? group. G group ਆ, group ਦੇ ਵਿੱਚ associative law hold ਕਰਦਾ, associative law hold ਕਰਦਾ. that means B1 star A star B2 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ. हाँ जी B1 स्टार A कितने इक्वल है ऊपर अपने को सी B1 स्टार A इज इक्वल टू E. ਇਹਦਾ मतलब E स्टार B2 आ गया. E स्टार B2 कितने बराबर है? E स्टार B2 भी अपने को की है B2 के बराबर. क्यों? बिकॉज E इज अ आइडेंटिटी एलिमेंट. इफ E इज आइडेंटिटी एलिमेंट देन E स्टार B2 इज इक्वल टू B2 आ गया. हाँ जी इतो अपने को आ गया B1 इज इक्वल टू B2. B1 and B2 both are inverse of A and both are equal. That means inverse is always unique. Now third result, third property is cancellation law hold in a group. Cancellation law group ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ hold ਕਰਦਾ. cancellation law ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, left cancellation law ਤੇ right cancellation law. हाँ जी देखो for A B C belongs to G, तीन elements लेते group ਦੇ. A star B is equal to A star C कितना. कैंसिलेशन लॉ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲॉ. ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਲੈਫਟ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲॉ ਆ that means A ਨਾਲ A ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ B C. ਇਹ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਆ? ਰਾਈਟ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲॉ. B star A is equal to C star A ਆ. ਰਾਈਟ मतलब ਰਾਈਟ हैंड साइड ਤੋਂ ਆਪਾਂ कैंसिल करना. A ना A राइट हैंड साइड तो कटे गए, अपने को आंसर की आ गया B इज इक्वल टू C. ये आप प्रूव करांगे दोनों प्रॉपर्टीज ताकि अगे आप थ्योरम्स दे विच ये रिजल्ट्स प्रॉपर्टीज यूज कर सके. हाँ जी देखो लेट A B C बिलोंग्स टू G, ग्रुप दे एलिमेंट है. सिंस A की दा एलिमेंट है ग्रुप दा, ऑब्वियसली G की है ग्रुप दे विच हर एक एलिमेंट दा इनवर्स एग्जिस्ट करता. दैट मींस A इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू G such that A inverse belong करता such that our result satisfy होएगा. A inverse star A is equal to identity is equal to A star A inverse. Fourth property है group की existence of inverse. Now suppose that मान लिया फर्स्ट पार्ट आप करने जा रहे हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ. लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ की आ साइड लेती A स्टार B इज इक्वल टू A स्टार C.
ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी ले लिया आप। हाँ जी, ये तो अगे आप की किया, देखो दोनों पासे ए इनवर्स के नाल स्टार कर दिता बाइनरी कॉम्बिनेशन। क्यों की? बिकॉज अपने को रिजल्ट ए इनवर्स भी ग्रुप का ही एलीमेंट सी, ए भी ग्रुप का एलीमेंट है, बी भी ग्रुप का एलीमेंट है, सी भी ग्रुप का एलीमेंट है। जे ए ग्रुप का एलीमेंट है, बी ग्रुप का एलीमेंट है, ग्रुप के विच फर्स्ट प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करती है क्लोजर प्रॉपर्टी। दैट मीन्स ए स्टार बी भी ग्रुप का एलीमेंट है, ए भी ग्रुप का एलीमेंट हो गया, ए स्टार बी भी, ए इनवर्स भी ग्रुप का एलीमेंट है। इन्हां दोनों की क्लोजर प्रॉपर्टी लगाओ तो की हो जाना, ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी आ गया। ए दे बराबर सी, ए भी ग्रुप का एलीमेंट है, इधर भी बोथ साइड से ए इनवर्स अपने को लगा देता। हाँ जी, हुण एसोसिएटिव लॉ लगा दो, बिकॉज जी ग्रुप विच एसोसिएटिव लॉ ट्रू हुंदा। ए इनवर्स स्टार बी बाहर आ गया, ए इनवर्स स्टार सी बाहर आ गया। हाँ जी, ए इनवर्स स्टार ए किसके बराबर है? आइडेंटिटी के बराबर। क्योंकि बिकॉज ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए। सिमिलरली ए स्टार ए की इक्वल है ई के बराबर। इधर रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड अपने को बी आ गई, राइट हैंड साइड अपने को सी आ गई, दैट मीन्स बी इज इक्वल टू सी। यही आप प्रूव करना सी लेफ्ट कैंसिलेशन वाली। इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी, दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी, दैट मीन्स लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर गया। सिमिलरली वी कैन प्रूव राइट कैंसिलेशन लॉ ऑल्सो। हाँ जी, नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है रिवर्सल लॉ फॉर इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट। इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट रिवर्सल लॉ करना छोटी क्लासेस दे विच भी आपां करदे हां, मैट्रिसेस दे विच करदे हां, सेम उसी तरह ही। प्रूफ इहदा अलग है क्योंकि ग्रुप दे विच प्रूफ करना। हाँ जी, की है ए स्टार बी द इनवर्स, ए स्टार बी आपां लिखता इहदा इनवर्स, दिस इज इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, ये आपां प्रूफ करना। सिंस प्रूफ है, सिंस ए बी बिलोंग्स टू जी, ग्रुप के दो एलिमेंट्स आ, ग्रुप के विच फर्स्ट प्रॉपर्टी हुंदी क्लोजर प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली ए स्टार बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी भी किन बिलोंग करेगा जी का। क्यों? क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर दिया। हाँ जी, दिस इंप्लाइज सी बिलोंग्स टू जी, सी जी नू बिलोंग करेगा। क्यों? बिकॉज सी इज इक्वल टू ए स्टार बी अपन चूज कर लिया, ए स्टार बी नू सी चूज कर लिया, दैट मीन्स सी भी जी नू बिलोंग करेगा ऑल्सो। हाँ जी, ए बी जी नू बिलोंग कर दिया, दैट मीन्स वी कैन से बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। इफ बी ए बिलोंग्स टू जी, जी की है ग्रुप, ग्रुप विच इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी एग्जिस्ट, ऑब्वियसली बी इनवर्स ए इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू जी, B inverse A inverse also belongs to G, then we can apply now closure property. Closure property के accordingly B inverse star A inverse also belongs to G. हाँ जी, B inverse star A inverse नो D choose कर, we can choose D. D that means D also belongs to G, D भी G नो belong कर गया। इतने तक अपने को रिजल्ट आ गया, ये अपन चूज कर लिया C ते D. Now consider C स्टार D कंसीडर करो, एक साइड लेते आप। हाँ जी, C स्टार D, C का D दे नाल बाइनरी ऑपरेशन किया, आप की लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ C, C इज इक्वल टू A स्टार B, वैल्यू पुट कर दी स्टार D आ गया। बिकॉज ये सारे एलिमेंट्स का दे ग्रुप दे, ग्रुप दे विच फर्स्ट प्रॉपर्टी किहड़ी सैटिस्फाई हुंदी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। दैट मीन्स इनू आपां इदां भी सॉरी फर्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ लगाया, इनू आपां इदां भी लिख सकते हैं ए स्टार बी स्टार डी भी लिख सकते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी इत्थे लगी सी ते इत्थे अपने को क्या आ गया? एसोसिएटिव लॉ आ गया। हाँ जी, ए स्टार बी इधर आ गया, स्टार डी की वैल्यू इत्थों पुट कर दी, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, इनू फिर इत्थे एसोसिएटिव लॉ लगाया, बी स्टार बी इनवर्स ए ब्रैकेट दे विच कर लिया, स्टार ए इनवर्स आ गया एसोसिएटिव लॉ दे नाल। बी स्टार की है बाइनरी ऑपरेशन, बी ते बी इनवर्स दा बाइनरी ऑपरेशन किहदे इक्वल होएगा? ऑब्वियसली आइडेंटिटी दे, क्योंकि ई आइडेंटिटी है, स्टार ए इनवर्स आ गया। हाँ जी, फिर इनू सॉल्व किया की आ गया, ए स्टार ए इनवर्स आ गया, ए स्टार ए इनवर्स किहदे इक्वल आ गया? ऑब्वियसली ई दे बराबर आ गया। दैट मीन्स आप की प्रूव कर दिता कि सी स्टार डी किहदे बराबर है? ई दे बराबर है।
सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं डी स्टार सी इज ऑल्सो इक्वल टू ए। जे आप डी स्टार सी लीए दैन ਇਹਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਏਗਾ E ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ C star D is equal to E is equal to D star C। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ one is the inverse of the other element। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ C ਇਨਵਰਸ is equal to D ਆ ਗਿਆ। C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਸੀ A star B ਇਹ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ A star B ਦਾ ਹੋਲ ਇਨਵਰਸ is equal to D ਆ ਗਿਆ ਸੀ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ that's all ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਫਿਫਥ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ let AB belongs to G then the equation ਕੀ ਆ A star X is equal to B has unique solution in G। अब की प्रूव करना इस इक्वेशन का एक तो सोल्यूशन होएगा दूसरा रिजल्ट आप प्रूव करना यूनिकनेस। ये मैं प्रूव करके तुहानू दिखा रही हूँ। हाँ जी ਇਹਦਾ सोल्यूशन है let A belongs to G A ग्रुप का एलिमेंट है ऑब्वियसली G ग्रुप पर ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ that means A inverse also belongs to G। A inverse किस तरह बिलोंग करेगा कि A star बाइनरी ऑपरेशन A inverse कितना ते E आंसर आ गया जे A inverse star A करिए तभी E आंसर आ गया that means लेफ्ट इनवर्स ते राइट इनवर्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं ये अपने को रिजल्ट आ गया। नाउ लेट A G का एलिमेंट है A इनवर्स भी G का एलिमेंट है ते B भी किदा एलिमेंट है G का A ते B A इनवर्स ते B दोनों एलिमेंट किदे है G दे G की है ग्रुप का मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है that means A inverse star B also belongs to G। A inverse star B भी किन्नू बिलोंग करेंगे G नू। मान लो टेक X is equal to A inverse star B X ले लिया A inverse star B। हाँ जी प्रूफ की करना सी इस इक्वेशन का सोल्यूशन है इक्वेशन लिखो A star X this is equal to A star X की वैल्यू पुट की A inverse star B। हाँ जी इनू सॉल्व किया A star A inverse star B ये क्यों इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि G की है G is ग्रुप और ग्रुप के विच की प्रूफ करते हैं आप एसोसिएटिव लॉ होल्ड करवाने हैं। एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंगली इन्हों दोनों आप एक ब्रैकेट के विच लिख सकते हैं। A स्टार A इनवर्स की इक्वल है E के बराबर E स्टार B आ गया E स्टार B का मतलब B दैट मीन्स A स्टार X इज इक्वल टू B आ गया ये आप प्रूफ सॉरी A स्टार X इज इक्वल टू B आ गया यही आप प्रूफ करना सी कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। नाउ एक पार्ट रह गया वो किया यूनिकनेस। मान लो इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन ने दो सोल्यूशन आ let x1 x2 both are solution of A star X is equal to B दो ये सोल्यूशन आ प्रूफ की करना x1 is equal to x2 जे दोनों ये सोल्यूशन आ दैट मीन्स A स्टार x1 भी B के बराबर होएगा A स्टार x2 भी किदे इक्वल होएगा B दे इक्वल होएगा दोनों इक्वल B दे होंगे। हाँ जी नेक्स्ट है राइट हैंड साइड्स इक्वल है ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल होंगी A स्टार x1 इज इक्वल टू A स्टार x2 ये आ गया रिजल्ट। G की है ग्रुप दे विच आपां थर्ड रिजल्ट किया सी कैंसलेशन लॉ होल्ड करदा लेफ्ट भी ते राइट भी ये विच लेफ्ट कैंसलेशन होल्ड करेगा तो दैन ए ना ए कैंसल हो जाना दैट मीन्स अपने को की आ गया x1 इज इक्वल टू x2 ਇਹਦਾ मतलब आपा की प्रूफ कर दिता कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन होएगा और सोल्यूशन की होएगा यूनिक सोल्यूशन होएगा। ये सारिया प्रॉपर्टी सी एलीमेंटरी प्रॉपर्टी सी नैक्सट लैक्चर दे विच आपां ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप करते हैं। अज लिए लैक्चर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।